Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Seek Taneja. In previous video, we have covered chapter number 10 of class 8, the undeserved reward. Now in this video, we will cover the rest of the part. In previous video, we have done till now. I'll just tell you the summary that the narrator got the summon from district officer whom he used to like, but sudden summon just leave him surprised, and he took suggestions from his friends, and they give their different kind of suggestions that you should go or not. Then he calculated himself, if he would be visiting my house, then would he be able to attend him, host him, or entertain him properly. So with all these consideration in mind, I have decided, means narrator decided to go and visit the district officer. He listened to his friends, उसने अपने दोस्तों की सुनी, and finally उसको उसने सुनी सबकी but करी अपनी. So he decided to go. I stayed with him for some time and we talked about things in journal में वो बात करने लगा. His behavior did not give me any reason to complain, although I did not attach any importance to this meeting. People soon came to know of it, and in some circle it came to know that I was a great friend of district officer. Simply वो district officer के पास गया, and after that they discussed few things in journal. But when he came back, जो लोग थे वो क्या सोच रहे थे कि ये एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का बहुत फास्ट फ्रेंड है. अभी यूजुअली क्या होता है कि जनरली लाइफ में जब भी आपके पास कोई आप किसी जो पॉलिटिक्स में होता है, किसी हाई पोजीशन में जो लोग होते हैं, वो आपका नोन होता है, तो वो सारे लोग आ जाते हैं, मेरा ये काम करवा दो, वो काम करवा दो. इन द सेम में उसको भी वो भी एडवांटेज कि उसके पास भी लोग आने लग गए अपना मैटर्स डिस्कस करने. आई कुड हैव इजली टेक advantage of the situation. A drowning man catches even at a straw. It would not have been difficult for me to convince people that through me they could get favors from the district officer, but I consider them this as downright mean and dishonest. वो कहता मैं किसी भी तरीके से फ़ायदा उठा सकता था, पर वो उसके लिए वो dishonest और mean हो जाता. तो many people came to me. Some had grudges against the police, some had tales to tell about high-handedness of income tax officials, other complained about discrimination in the district officer. अपनी अपनी कंप्लेंट्स लेके आ रहे थे कि हमारे साथ ऑफिस में डिस्क्रिमिनेशन हुआ. वेयर undeserving people were getting promotions to all of them. My answer was same, that such matters had nothing to do with me. तो सबको वो एक ही आंसर देता था कि ये सब मैटर्स में मेरे साथ कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिस्कस नहीं करता, तो ये मेरे पास आप अपने मैटर मत लेके आइए. One day I was sitting in my room when a childhood friend called. We had studied together. That was some 45 years ago. I was about 8 or 9 years old. He was about the same. I was thin, lean, intelligent. He was fat, strong and dull. अब यहाँ पे एक वो इंसिडेंट अपना रिमाइंड कर रहा है कि एक दिन वो बैठा था, बट उसका एक बहुत पुराना चाइल्डहुड फ्रेंड आया. बट जब वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था, वो फैट था, बहुत बल्की था और डल था. ऑन द अदर हैंड जो नरेटर खुद था वो थीन, पतला, दुबला और इंटेलिजेंट. सो टीचर वॉज कम्प्लीटली fed up with him and had assigned me the task of giving him extra lessons. I considered this a great honor, and where the teacher Kane failed, my sympathetic approach yielded result. वो कहता है जहाँ पे टीचर के एफर्ट्स फेल हो जाते हैं वहाँ पे इसकी अप्रोच शुरू हो जाती है. सो बलदेव, उस नरेटर के चाइल्डहुड फ्रेंड का क्या नाम है? बलदेव, जिसकी यहाँ बात किसकी हो रही है? बलदेव की. वो सून वेल अप इन द स्टडीज. Unfortunately, because of teacher's sudden death, the school closed down and we all parted. तो स्कूल में स्टडीज़ में सडन क्या हुआ, टीचर की डेथ हो गई, अलग स्कूल हो गया, देन दे पार्टेड, मतलब वो सेपरेट हो गए. Since then, I had met Baldev only once or twice casually and had never exchanged more than a
मेयर हरिड ग्रीटिंग विद हिम, शेकिंग हिज हैंड, सेड हाउ आर यू बलदेव। कहते उसके बाद हम कभी मिले। अभी हमारे कितने सारे फ्रेंड्स होते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सबके लिंक में रहे। कोई मिलता भी है, वी जस्ट रिकॉग्नाइज एंड से हाई हेलो, नथिंग एल्स। इन द सेम वे उसकी हाई हेलो से ज़्यादा कभी बात नहीं हुई। प्लीज़ कम इन, आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस। तो बलदेव उनको विजिट करने आता है, तो बोलता है नरेटर दैट प्लीज़ कम इन, मैंने तुम्हें बहुत सालों से देखा नहीं है। आई हैव वांटेड टू सी यू फॉर लॉन्ग, सैड बलदेव। यू आर माई टीचर यू नो, बट फॉर यू आई वुड स्टिल हैव बीन अ गुड फॉर नथिंग चैप। नाउ आई कैन टेक एट लीस्ट I can at least look after my lands. I don't know why, but whatever the Maulvi Sahib taught me went completely over my head. For teaching an ass like me, the credit goes entirely to you. क्या आता है, जो आपकी कुछ एक्स्ट्रा हेल्प करता है, आपका फ्रेंड है अपार्ट फ्रॉम टीचर, वो हमें हमेशा याद रहता है। इन द सेम वे बलदेव वॉज रिमेंबरिंग द मोमेंट दैट मौलवी साहब ने जो मुझे पढ़ाया वो मेरे सर के ऊपर से निकल गया जाता था और मुझे नहीं समझ आता था, पर जो एज अ फ्रेंड वो नरेटर ने बलदेव की हेल्प की, वो उसके लिए अभी भी याद है। तो सारी उसकी स्टडी का जो क्रेडिट है वो नरेटर को जाता है। बलदेव सैड ओवरवेल्म्ड, एज यू कैन सी ही इज़ बलदेव और ये नरेटर है, ठीक है। Baldev, I said, overwhelmed. Whenever I see you, the childhood memories revive with the freshness. This long spell of 45 years vanishes in a minute. Baldev replied, I have always considered you an elder brother. अब यहाँ दोनों में कन्वर्सेशन हो रही है, बलदेव एंड नरेटर में। तो वो कहता, मैं बलदेव कहता है जब भी मैं आपको देखता हूँ मुझे चाइल्डहुड मेमोरीज आती हैं। और बलदेव भी कह रहा है कि मैंने हमेशा एज एन एल्डर ब्रदर आपको ट्रीट किया है। एंड टेल एवरीवन दैट आई कैन डिपेंड ऑन यू वट एवर आई एम इन ट्रबल। और कहता कि मैं सिर्फ मुझे इतना विश्वास है कि जब भी मैं ट्रबल में हूँगा तुम मेरी ज़रूर हेल्प करोगे। वाई डोंट यू ईट प्रॉपरली। अभी क्या होता है कि जब भी हम किसी अपने पुराने फ्रेंड से मिलते हैं, भी बोलते हैं तुम कितने पतले हो गए हो, तुम कुछ खाते क्यों नहीं हो। इन द सेम वे बलदेव इज सेइंग दिस टू his childhood friend narrator, you are thin as ever. If you can't get good ghee, I can send you a couple of tins. And you are getting old, food is only thing that will keep you going. Look at me, I can still drink a seer of milk and eat a quarter seer ghee. Seer, you need to count milk, beside some butter, आई टू कीप फिट। वो अपना बता रहा है कि मैं अच्छे से खाना खाता हूँ, घी खाता हूँ, दूध पीता हूँ। इन द सेम में तुम्हें भी खाना चाहिए। ऑल्दो द होल लाइफ हैज़ बिन स्पेंड इन ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, डू दे केयर अबाउट मी? इफ आई वर to fall ill they would even come to me ask, they wouldn't even come to ask if I needed anything. Yes, I have come to you about my एल्डेसन। तो उसने बताया कि हाँ मुझे फ़िट रहना मेरे लिए एक ऑप्शन ही है, क्योंकि अगर मैं फ़िट नहीं रहूँगा तो मेरा कौन ध्यान रहेगा। क्या मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया है, मैं बीमार हुआ आएंगे? नेवर। तो अब वो बता रहा है किस पर्पज़ से उसके पास आया। वो एल्डेस्ट सन का एक मैटर लेके आया। यू नो ही इज़ ए हैफ्टी एंड वेल बिल्ट मैन, हैफ्टी हट्टा कट्टा, एंड कैन नेवर टेक एनीथिंग लाइंग डाउन। ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन ही क्वार्रल्ड विद पुलिस एंड झूठ बोलना उसको पसंद नहीं है और वो उसकी बहुत बार पुलिस से लड़ाई हुई है। एंड दे हैव ऑलवेज बीन ऑन लुक आउट एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्लीकेट होता है इन्वॉल्वमेंट क्रिमिनल केस। वो कहते हैं ना पुलिस वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए। इन द सेम में वो पुलिस वालों से लड़ाई करता था, तो वो हमेशा इस ताक में रहते थे कि कब उसको किसी फॉल्स केस में फंसाया जाए। रिसेंटली व्हेन ए डेकोती टुक प्लेस इन विलेज, दे गॉट देयर चांस एंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रॉब्ड हिम। He is under arrest, has been in jail from last week. The case is filed in court of Deputy Collector Mr. Mohammed Khalil. The Daroga Sahib and he are great friend, and I am sure that my son will be sentenced. No one but you can save him. If he is sentenced, a whole family will be ruined. I don't एक्सपेक्ट यू टू डू एनीथिंग आउट ऑफ द वे। वो कहता है कि उन्होंने फॉल्स केस में फंसा के उसको जेल कर दी है और उसके ऊपर केस चला दिया है। जो मोहम्मद है दरोगा साहिब और जो डिप्टी कलेक्टर है वो फ्रेंड्स हैं, और वो श्योर था कि उसके जो सन है उसको सज़ा होगी उसको फॉल्स केस में।
अब मैं तुमसे ऐसा नहीं कहता कि तुम जाके उनको कहो, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ऑल यू हैव टू डू इज़ टू गो टेल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दैट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स केस, दैट ही शुड इन्वेस्टिगेट द मैटर। अब देखो बलदेव आया है, उसने ऐसा भी नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड को छुड़वा दो, आपको यही करना है। उसने कहा सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को इतना बताओ कि उसका जो बेटा है ये केस फॉल्स है और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बस इतना। यू आर ए चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइंड, माई गुरु। अब यहाँ पे वो रीजंस देता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। प्लीज डू नॉट रिफ्यूज, आई नो यू डोंट लाइक गेटिंग इन्वॉल्व इन सच मैटर एंड इट इज़ राइट टू, बट इन दिस केस यू शुड थिंक एज इफ योर ओन सन इज इन ट्रबल। तो वो कहता है कि तुम्हें इसे ऐसा सोचना है कि जैसे तुम्हारा खुद का बेटा ट्रबल में हो, ऐसे तुम्हें हेल्प करनी है। इफ़ द केस हैड नॉट बीन एब्सोल्युटली फॉल्स आई वुड नॉट हैव ट्रबल्ड यू। अगर अगर केस फॉल्स होता, मेरा बच्चा सच में कुछ क्राइम करता, मैं कभी नहीं आता। बट दिस केस इज़ फॉल्स, द बॉयज़ मदर इज़ क्राइंग हर हार्ट आउट. His wife has not eaten anything since his arrest. As a matter of fact, nothing has been cooked in the house. देखो वाइफ कुछ खा ही नहीं रही, तो उसकी वाइफ किस हालत में होगी कि वो बना पाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो इफ़ अगर उसको सेंटेंस हो जाती है, मीन्स उसको सज़ा मिल जाती है, आई एम श्योर दैट बोथ दीज वीमेन विल डाई, सब मर जाएंगे। आई हैव कंसोल्ड देम बाय सेइंग दैट एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव नो वन कैन हार्म द बॉय। यहाँ पर नरेटर ने उसको तसल्ली दी कि जब तक तुम जिंदा हो, मीन्स बलदेव जिंदा है, उनके बेटे को कुछ नहीं हो सकता। Then I was in great fix. All the objections I could have forward had already been answered by Baldev Singh. I could not think of a valid excuse and said ultimately to get out predicament. All right, I shall mention to district officer, but in doubtful that anything would come out. He does not interfere in the work of his subordinates. वो कहता है ठीक है। अब वो ग्रेट फिक्स, मतलब ग्रेट ट्रबल में था, क्या करूँ मैं, इसको क्या बोलूँ, प्रॉमिस करूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने नहीं मानी, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, उसने आउट ऑफ प्रेडिकामेंट बोल दिया, ठीक है मैं तुम्हारा मैटर रख दूंगा, पर मैं प्रॉमिस नहीं करता कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा या नहीं। अब यहाँ देखो, सम टाइम हमें कोई कुछ काम कहता है, हम विलिंग नहीं है करने को, हम ऐसे बोल देते हैं नहीं नहीं अच्छा ठीक है हम तुम्हारा काम कर देंगे, और फिर हम भूल जाते हैं। ठीक है, इन द सेम वे यू गो एंड टेल हिम अबाउट दिस केस। वो कहता है, बलदेव कहता नहीं, तुमने सिर्फ ये बताना है केस के बारे में, दैट्स ऑल आई आस्क यू, तुमने सिर्फ इतना करना है, रेस्ट विल डिपेंड ऑन फेट, विल यू गो टुमारो। उसने कहा क्या तुम कल जाओगे? बलदेव सिंह टुक लीव ऑफ मी, आई कंप्लीटेड द आर्टिकल आई वॉज राइटिंग एंड ले डाउन टू रेस्ट आफ्टर फिनिशिंग माई मील्स। मतलब वो खाना ख़त्म करके लेट गया। आई हैड नो इंटेंशन वट्सोएवर ऑफ कीपिंग माई प्रॉमिस, उसको कोई इंटेंशन नहीं थी। एंड ऑल आई हैड टेल हिम, सिर्फ उसकी ये इंटेंशन थी, उसको बताना था कि नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने उसका जो केस है कंसीडर ही नहीं किया, और ये भी नहीं कहा कि इंटरफेयर, मतलब उसने आगे को उसको क्या जवाब देना है वो भी सोच लिया। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट इन लास्ट पैराग्राफ, लिसन केयरफुली। I had completely forgotten about the incident when 8 days later Baldev Singh and his son came to see me. अब 8 दिन के बाद वो पूरा इंसिडेंट भूल गया था। बलदेव और उसका सन आए। द सन knelt and touched my feet. बलदेव सिंह said, दिस इज़ द बॉय, अपने बेटे के साथ आया जो जेल में था, और कहा ये मेरा बेटा है। वो जेल ही हैज़ बिन लेट आउट विदाउट अ ब्लैमिश, मतलब विदाउट ए चार्ज, वो किसी भी चार्ज से वो हो गया है, मुक्त हो गया है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कोल्ड द दरोगा एंड रिप्रीमेंडेड होता है, उसको स्कोल्डेड हिम सिवियरली, बहुत बुरी तरीके से डांटा दरोगा को, और वॉर्न किया अगर फ्यूचर में मेलगेनिंग होती है, ब्रिंगिंग बैड नेम टू समवन विदाउट एनी बेसिस, किसी को झूठे केस में फंसाना, अगर तुमने आज के बाद किसी के साथ ऐसे किया तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उस दरोगा को डिसमिस कर देगा। द दरोगा कुड नॉट इवन शो हिज फेस टू मी आफ्टर दिस, इट इज़ ऑल ड्यू टू यू, बट फॉर यू वी हैव 4 lives. When I came to you, I had my doubts whether you would help. People had told me nobody had ever benefited through you, but I was certain that you would not let me down. And saying this, he signaled to his son, who went out and brought a huge bundle of presents mean gift. उसको यहाँ बता रहा है कि मैं डाउटफुल था, तुम मेरी हेल्प करोगे क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि
जो नरेटर है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का फ्रेंड है, इससे किसी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बट वो श्योर था, बलदेव जो था वो सर्टन था कि वो उसके बेटे की हेल्प करेगा। सो उसने इतने में इशारा किया और उसका सन उसके लिए प्रेजेंट्स बहुत सारे, ये देखो ये जो बकेट है इसमें बहुत सारे प्रेजेंट्स लेके आया। इन स्पाइट ऑफ माई इंसिस्टेंट मतलब प्रेशर, उसके कहने के बार बार कहने के बाद, अब समटाइम क्या होता है हमें कुछ गिफ्ट देते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं रहने दो मे वी डोंट नीड इट, पर वो धक्के से हमारे रिलेटिव्स हमें पैसे दे जाते हैं, गिफ्ट्स दे जाते हैं। सो दे रिफ्यूज टू टेक इट बैक, पर उन्होंने कहा नहीं आपको रखना पड़ेगा। एंड आई कुड नॉट पिक अप करेज टू टेल देम एंड आई हैड डन नथिंग टू डिज़र्व दिस रिवॉर्ड। और उसने बोला कि मेरे पास इतना भी करेज नहीं था कि मैं उसको बता दूं कि ये मैं डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। सो दैट्स वाई दिस चैप्टर्स नेम इज़ द अनडिज़र्व रिवॉर्ड, क्योंकि नरेटर ने कुछ नहीं किया, अपने आप ही केस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के सामने आया, उसने सॉल्व किया और बलदेव को लगा कि वो उसने सॉल्व करवाया और उसके लिए वो गिफ्ट्स लेके आया। सो यहाँ पे आपकी स्टोरी एंड होती है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके, ट्रू फॉल्स यू कैन डू आफ्टर रीड दिस चैप्टर एंड देन डू इट, ट्राई इट, वेरी इजी क्वेश्चन आंसर्स। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।